Dear students, welcome back to my channel. Today I will start one chapter from chemistry, that is hydrochloric acid और HCl. तुम लोग जानते हो हमारा आईसीएसई सिलेबस में 3 मिनरल एसिड होते हैं. एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक नाइट्रिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड. ये 3 एसिड हम पढ़ते हैं. इनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे छोटा चैप्टर होता है. तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, आई ऑलरेडी टोल्ड यू vividly, my teaching process is strictly based on exam pattern. So according to exam pattern, whatever question is asking in exam, that type mane study I will just teach you. So if you vividly go across this, definitely you will be 100% benefited. Okay, so HCl. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने से पहले तो तुम लोग को फर्स्ट में बताता हूँ, HCl इज ए पोलर कोवैलेंट कंपाउंड. ओके, इट इज ए पोलर कोवैलेंट कंपाउंड. इन HCl को भी कहा जाता है म्यूरिएटिक एसिड. शॉर्ट क्वेश्चन आता है, द अदर नेम ऑफ HCl इज म्यूरिएटिक एसिड. सो इट इज prepared by synthesis H2Cl2 by synthesis H2 plus Cl2 2HCl. अच्छा, H2 plus Cl2 2HCl ये होना चाहिए डिफ्यूज सनलाइट. इन डिफ्यूज्ड sunlight. So this is the method of synthesis by which HCl is prepared. So now I will important thing, the laboratory preparation of HCl. Actually हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने से पहले फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक गैस या HCl गैस बना जाता है लेबोरेटरी में. So this is the laboratory preparation of HCl. This is much more important. So in laboratory preparation of HCl, we take very important NaCl, sodium chloride plus concentrated H2SO for laboratory preparation. I am just writing the heading, laboratory preparation. Okay, plus H2SO for concentrated. Just I clear you, concentrated acid कहाँ पे यूज होता है? जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में यूज होता है, कोई भी टेस्ट में यूज होता है, ऑक्सीडेशन में यूज होता है. इसके अलावा सब जगह में कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट एसिड हम इस्तेमाल करते हैं. तो अब एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन, एक टेस्ट, एक ऑक्सीडेशन, वो 3 जगह को छोड़ के सब जगह में डाइल्यूट एसिड यूज होता है. Unless otherwise specified, you should treat dilute acid everywhere except these 3 places. So NaCl, sodium chloride plus H2SO4 concentrated give rise to, suppose the temperature is below 200 degrees Celsius, NaHSO4 sodium bisulfate plus HCl gas. Okay, if the temperature is above 200 degree, NaCl plus H2SO4 concentrated. So above 200 degrees Celsius. So Na2SO4 plus HCl, Na2, तो 2Na कर दो. अच्छा, HCl, सो यहाँ 2H कर दो, H2Cl. ओके, ओके, कंप्लीट. सो यू जस्ट थिंक ओवर इट. During the laboratory preparation of HCl, the temperature should be always taken below 200 degrees Celsius. If the temperature
will be taken above 200 degrees Celsius. Then instead of sodium bisulfate, sodium sulfate will be formed, which is deliquescent in nature, which will stick into the glass surface of the test tube. It may be difficult to remove out. Okay. Also unnecessary wastage of fuel. ओके टेम्परेचर इसीलिए हम हमेशा 200 से नीचे रखते हैं. ज़्यादा अगर रखेंगे इंस्टेड ऑफ NaH सोडियम बाइसल्फेट Na2SO4 sodium sulfate is formed, which is deliquescent in nature, which will stick into the glass surface, that will be difficult to remove, even it may break down the apparatus. Okay, so also unnecessarily wastage of fuel. Okay, therefore this is a equation, so temperature should be taken below 200 degrees Celsius. Okay, then why NaCl is chosen instead of other salt? मैग्नीशियम क्लोराइड हम ले सकते, अदर सॉल्ट भी ले सकते थे. why NaCl is taken? because NaCl is cheap. ऑल्सो मैंने कहा 3 एसिड हमारे पास, एक HCl, एक H2SO4, एक HNO3. so instead of H2SO4 we can also take HNO3. why nitric acid is not taken instead of sulfuric acid? because nitric acid is volatile in nature, sulfuric acid volatile नहीं होता है. that's why it is known as king of acids, king of chemicals. so इसीलिए हम नाइट्रिक एसिड नहीं लेते हैं. ओके, तो अब ये हो गया. ये एक एक्चुअली तुम बुक फॉलो कर सकते. एक थीसिल फनेल में एक राउंड बॉटम फ्लास्क का अंदर एक थीसिल फनेल हम यूज करते, और राउंड बॉटम फ्लास्क का अंदर हम रखते हैं NaCl. वो जो थीसिल फनेल इस टाइप का होता है, जस्ट आई से यू इस टाइप का होता है. तो राउंड बॉटम फ्लास्क का अंदर ये रहेगा. तो अब ये थीसिल फनेल में हम विथ प्रिक्वेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ डालेंगे. तो अब ये इसके बाद रिएक्शन होगा. तब द एंड ऑफ द थीसिल फनेल शुड बी डीप इनसाइड द एसिड, अदरवाइज इन दैट वे माने HCl गैस में पास आउट. तब ये क्या होता है, सपोज हम ऐसे किए, HCl गैस को ऐसे जाना है, तब HCl गैस यूं जाना है. लेकिन अगर थीसिल फॉयल का एंड अगर हम यहाँ HCl गैस इसको यहाँ तक रखो, ये तब यहाँ तक अगर ये तब ये यहाँ पे HCl गैस पास करेगा. अगर हम इसका एंड तक हम यहाँ तक रखेंगे, इफ इट इज नॉट डीप्ड इनसाइड द राउंड बॉटम फ्लास्क, देन HCl gas may be expelled out through the thistle funnel instead of going through the test tube. Okay, so ये चीज का ऊपर ध्यान देना है. This is also one equation. Okay, then HCl gas is collected by upward displacement of air, since it is heavier than air. Actually it is 1.28 times heavier than air. So it is collected by upward displacement of air. It is not collected over water, since it is highly soluble in water. Okay, then HCl गैस को हम ड्राई करेंगे. ये यहाँ से आने के बाद एक वेसल का अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके इसको ड्राई करते हैं. हमारा केमिस्ट्री में 3 प्रकार ड्राइंग एजेंट होते हैं. एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, एक कैल्शियम ऑक्साइड. लेकिन we choose concentrated H2SO4 to dry HCl gas, not P2O5 or CaO, because HCl gas reacts with P2O5 and CaO to give their respective products. So only drying agent concentrated H2SO4 is used instead of P2O5 and CaO. This is HCl gas when exposed to air gives white fumes. Why? Because HCl gas जो एयर को एक्सपोज होता है, तो by with the reacting with moisture it forms HCl acid.
Okay, so HCl gas when exposed to air gives white fumes. ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है. ये तो पक्का आता है. Why temperature is taken below 200 degree Celsius. This is very important. So it is collected. How it is collected? By upward displacement of air. Why it is not collected over water? Because why it is collected by upward displacement of air? Since it is heavier than air. Why it is not collected over water? Because it is highly soluble in water. So for solubility test के लिए हम HCl गैस को हमें पता है HCl गैस हो गया. इसके बाद पानी के साथ इसको सॉल्युबल करने पर वो HCl एसिड बनेगा. अभी HCl एसिड नहीं बना. ओके, देन मैं तुम लोग को बताता हूँ. सॉल्युबिलिटी टेस्ट के लिए एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है. So I will just explain you the gist thing. So fountain experiment is used to test the solubility of HCl gas. HCl गैस का solubility को टेस्ट करने के लिए फाउंटेन एक्सपेरिमेंट यूज होता है. ओके, सो ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ऐसे बना दूँ. जस्ट ब्लॉक डायग्राम आई एम डूइंग हियर. ओके, यहाँ पे एक चीज इससे ओके. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. ये नीचे रहा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. ओके, यहाँ एक ड्रॉपर ले लो. ड्रॉपर DROPPER ड्रॉपर. एक ड्रॉपर ले लिए. तब हम देखेंगे रेड फाउंटेन कैसे होता है. तो अगर इसके पास इसके अंदर HCl गैस हम अच्छी तरह जानते हैं. इसके बाद इसके अंदर HCl गैस. ओके, HCl गैस. ओके, ये रेड फाउंटेन. मैंने कहा ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. ये ड्रॉपर. ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. ओके, तो एक लिटिल कॉमन सेंस विल इंडिकेट इसका अंदर पहले HCl गैस था. HCl गैस था. हम क्या किए, HCl गैस था तब ये एक ड्रॉपर लेके हम वाटर माने वाटर इसका अंदर वाटर है. अगर इसको हम प्रेस कर दिए ये ऊपर गया. ऊपर जाने के बाद HCl गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर. इट इज ए ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर. वो वाटर के साथ वो सॉल्युबल हो गया. तब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ. तब नीचे से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर कैसे फोर्स हुआ. द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज रश टू द राउंड बॉटम राउंड बॉटम टेस्ट ट्यूब. इसका अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन फोर्स हुआ. फोर्स होने के बाद जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जब कोई एसिड या एसिडिक गैस का कांटेक्ट में आएगा वो रेड को चेंज हो जाता है. एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड. तब इसके अंदर यहाँ रेड फाउंटेन निकलेगा. तो सो दिस इंडिकेट्स दैट HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर.
ओके, समझे? सो दिस इज नोन एज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज फाउंटेन experiment because red fountain experiment, red fountain of blue litmus solution changes to red fountain, blue litmus solution, इसका blue color, red fountain यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो अब इससे पता चलेगा दिस इज द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट व्हिच शोज द solubility, high solubility of HCl gas. Okay, then next thing जे हम कहेंगे हाउ HCl गैस इज टर्न्ड टू HCl एसिड। अगर वो पानी के साथ सॉल्युबल होगा तभी तो HCl एसिड होता होगा। तब इसीलिए सपोज हम HCl गैस को ऐसे, सपोज इसका अंदर वाटर, ओके, मैंने ऐसे HCl गैस लाया, इससे इसका अंदर HCl गैस, ये क्या होता है? तो HCl गैस का इतना एफिनिटी पानी का ऊपर, तो ये HCl गैस यहाँ पहुंचते पहुंचते पानी बहुत जल्द इसके साथ सॉल्युबल होके ऊपर उठ जाता। सो इट फर्दर प्रिवेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस। तब ये HCl गैस जब यहाँ आता है, पानी इतना फोर्स होके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि HCl गैस हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर, तो बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल, पानी ऐसे ऊपर उठ जाएगा। पानी अगर ऊपर उठ जाएगा तब यहाँ तक सपोज पाइप का आधा तक आ गया, तब आधा तक आने पर फर्दर HCl गैस को एंट्री करने के लिए चांस नहीं देता है। तब इसीलिए तब हम, हमारा एम जो होता है HCl गैस को पानी में सॉल्युबल करेंगे, हम सॉल्युबल नहीं कर पाते। तब इसीलिए हम जानबूझकर एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ना, एक क्या होता है फनेल अरेंजमेंट, तो इससे करते। सपोज दिस इज वाटर, ओके, दिस इज वाटर। हम एक फनेल अरेंजमेंट करते हैं। फर्स्ट एक सपोज ऐसे HCl गैस आता है, यहाँ पे एक फनेल, HCl गैस, तब ये वाटर था। हम क्या किए, इसको ऐसे कर दिए, तो अब ये फनेल को मैंने ऊपर, ये वाटर, तब मैंने तुम देखो इसका ये फ्रंट वाला जगह में एक हम फनेल अरेंजमेंट कर दिए। तो अब इसका ये चौड़ा हो गया, समझे, इसका एरिया बढ़ गया। तब ये हो गया, जब इमीडिएटली पानी रश करेगा यहाँ तक अगर पहुंचा, इसको थोड़ा उठा देंगे इससे, तो उठा देने पर यहाँ गैप हो गया। मतलब ये पानी तो ज़्यादा ऊंचाई उठ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत वाइड है। तब यहाँ तक उठा, तो थोड़ा इसको ऊपर उठा दिए, तो पानी यहाँ तक पहुँचा। फिर यहाँ वैक्यूम हो गया, एयर यहाँ पे ये क्या होता है, ये जगह में एयर गैप, मैंने यहाँ गैस लिख दिया। सो दिस इज एयर गैप। सो एयर गैप में वो पानी गिर पड़ने के बाद फिर हम फर्दर क्या करेंगे, इसको फिर नीचे फिर पानी में डुबा देंगे। डुबा देने पर क्या होगा, फिर पानी रश करेगा ऊपर जाने पर फिर थोड़ा उठा लेंगे इसको, फिर यहाँ एयर गैप हो जाएगा। जितना सॉल्युबल हो गया ये फिर गिर जाएगा ऐसे।
फिर इसको नीचे दो डुबा देंगे, तब इसके बाद फिर थोड़ा सॉल्युबल हो गया, फिर ऊपर उठा देंगे, उठा देने पर ये एयर गैप में ये फिर गिर जाएगा। तो इस टाइप का हम माने HCl को सॉल्युबल करते हैं पानी के साथ। तो बाय यूजिंग फनेल एक्सपेरिमेंट, व्हाई वी यूज फनेल अरेंजमेंट? फनेल अरेंजमेंट इज डन to prevent the back suction of water, very important, to prevent the back suction, पानी जो सक्शन होके ऊपर उड़ जाता उसी को फनेल अरेंजमेंट प्रिवेंट करता है। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को चेंज करेंगे गैस को बाय यूजिंग फनेल अरेंजमेंट। व्हाई फनेल अरेंजमेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बैक सक्शन ऑफ वाटर। ओके, so this is completed. Then next one, HCl gas is acidic property of HCl gas. acidic property हम जानते HCl एसिड, HCl प्लस N प्लस H2O क्या देता है? H3O प्लस Cl माइनस। हम जानते हैं माने an acid is a substance which when dissolves in water produces hydronium ion as the only positive ion. I am just recalling you in acid base salt. An acid is a substance which dissolves in water produces hydronium ion as the only positive ion. यहाँ पे hydronium ion आया, तब क्यों आया? द कोवलेंट कंपाउंड आयनाइजेस इन वाटर, द कोवलेंट कंपाउंड HCl आयनाइजेस विथ वाटर ड्यू टू पोलर इन नेचर। ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड, सो ड्यू टू पोलर इन नेचर इट आयनाइजेस इन वाटर टू प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोरीन। देन नेक्स्ट वन एसिडिक प्रॉपर्टी हो गया। सो एनी एसिड react with active metal produces salt plus hydrogen gas. So हम कहेंगे एक्टिव मेटल क्या होता है? PaC माजिल। ये जस्ट याद रखना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, ये सब एक्टिव मेटल। ये एक्टिव मेटल के साथ HCl अगर कोई एसिड रिएक्शन करेगा, सपोज Na, सो इट विल गिव राइज टू वन सॉल्ट प्लस H2 मीन्स, तब हम क्या करेंगे? H2 2HCl 2Na। ओके, एनी एसिड प्लस एक्टिव मेटल गिव राइज टू ए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट अनलकीली नाइट्रिक एसिड में वो क्या होता है? एक्टिव मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाता, हम बाद में जानेंगे। ओनली माने फेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता, नहीं तो दूसरे एक्टिव मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्साइड होके वाटर को चेंज हो जाता है। वो चीज हम बाद में जानेंगे। सो एनी एसिड प्लस एक्टिव मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर ये टेस्ट आएगा, हम कहेंगे गिव योर ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लिखेंगे ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज हाइड्रोजन और दैट इज H2 व्हिच बर्न्स विथ ए पॉपिंग साउंड। ओके, सो दिस वन कंप्लीट। देन एसिड हो गया। सो इसके बाद एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये जानते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन हम जानते हैं, एसिड बेस में हम पढ़े हैं। सो अगर कोई अल्काली रहेगा तब न्यूट्रलाइजेशन को, इफ बेस इज अल्काली देन न्यूट्रलाइजेशन को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। सो टाइट्रेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो HCl प्लस NaOH सपोज ले लिए, सो सॉल्ट NaCl प्लस H2O,
2Na, हाँ 4H2O 2Na 2Cl. So acid plus base, salt plus water, this is neutralization. Then any acid, third one, any acid react with carbonate or bicarbonate, तो HCl कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो। अच्छा, कार्बोनेट Na2CO3 प्लस सॉल्ट क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 ओके। तब हम देखेंगे HCl प्लस Na2, इसको बेटर तुम लिख दो, तो नीचे तो लिखते, तब इसको लिख दो एसिड एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब Na2CO3 HCl के साथ अगर इसको यूज किए तब हो जाएगा सॉल्ट NaCl कंप्लीट प्लस CO2 प्लस H2O। इसको हम बैलेंस कर सकते, 2 अगर यूज कर दिए 2H हो गया, तो 2H हो गया, 2Cl हो गया, Na2 हो गया का Ca के ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन 3 ओके। सो सिमिलरली बाइकार्बोनेट HCl प्लस NaHCO3 ओके गिव राइज टू एक सॉल्ट, क्या होता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। यू कैन ऑल्सो बैलेंस दिस। सो एनी सॉल्ट एनी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट वाटर प्लस CO2 देता है। देन आएगा, अगर इसमें आया ये जो CO2 दिया, सपोज आएगा गिव योर ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, हम लिखेंगे ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड दैट इज CO2 व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की और व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक होता है ओके। ये अगर ऑब्जर्वेशन पूछा ये लिखेंगे, अगर इक्वेशन लिखा पूरा इक्वेशन लिखेंगे ओके। देन आ गया सल्फाइड टी, देखो सल्फाइड टी होता है 2- सल्फाइड डी होता है 2-। सपोज सोडियम सल्फाइड टी, हम ये लिखेंगे फर्स्ट एसिड प्लस सल्फाइड टी, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ओके। सो हम देखेंगे HCl प्लस सोडियम सल्फाइड टी, Na2 में हमेशा इजी के लिए सोडियम ले लेता, कुछ भी तुम ले सकते, सोडियम सल्फाइड टी। सो गिव राइज टू वन सॉल्ट, क्या होता है NaCl प्लस वाटर प्लस SO2 ओके। SO2 हाइड्रोजन 2 होता है, हाइड्रोजन 2 ये कर दो 2Na हो गया। सो एनी सॉल्ट प्लस सल्फाइड टी या बाई सल्फाइड भी ऐसे हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, एनी सॉल्ट प्लस एनी एसिड प्लस सल्फाइड टी, तो गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर ये इक्वेशन आएगा ऐसे लिखेंगे, या टेस्ट के लिए आएगा गिव योर ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये कलरलेस गैस विथ बर्निंग सल्फर स्मेल इज प्रोड्यूस्ड, a colorless gas with burning sulfur smell is produced, that is sulfur dioxide, which turns lime water blue, या which turns moist blue litmus solution red, क्योंकि वो एसिडिक होता है, क्योंकि SO2 NO2 ये सब होता है, ये एसिड रेन का मुख्य होते हैं ओके। तब ये हो गया सल्फाइड टी हो गया। देन सल्फाइड डी, एसिड प्लस सल्फाइड डी
सल्फाइड डी गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, सो हम लिए HCl प्लस सल्फाइड Na2S, सल्फाइड का वैलेंसी 2 होता है, तब NaCl 2 इंटू कर दो, 2 इंटू कर दो प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S। ओके, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, सो ये सल्फाइड के साथ वाटर नहीं देता, खाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देता। इसके लिए अगर ऑब्जर्वेशन पूछा गया, गिव योर ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फाइड डी, हम कहेंगे ये गैस ए कलरलेस गैस विथ पंजेंट ऑडर स्मेल और पंजेंट ऑडर स्मेल और इरिटेटिंग स्मेल इज प्रोड्यूस्ड which turns blue litmus solution red। और अलग अलग प्रॉपर्टी होता है जो इजी रहेगा, मैं बताता हूँ क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर। which turns blue litmus solution red, अदरवाइज तुम पूरा इक्वेशन अगर पूछा होगा पूरा इक्वेशन लिखेंगे। ओके, सो देन वन इम्पोर्टेंट चीज रहा एक, हाँ, सोडियम बाइसल्फेट रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फेट, ये थोड़ा लंबा रिएक्शन है। सोडियम बाइसल्फेट, ये Na2S2O3 प्लस HCl, ये थोड़ा ये बाइसल्फेट सोडियम बाइसल्फेट को थोड़ा याद रखना दिक्कत है। तो ये होगा NaCl H2O, NaCl देता, एक सॉल्ट देता, वाटर देता, सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता प्लस सल्फर एक सॉलिड भी देता। ओके, इसको थोड़ा हम बैलेंस करेंगे, तब ये NaCl में तो 2 इंटू कर दो, HCl में 2 इंटू कर दो, हो जाएगा। ओके, ये सोडियम बाइसल्फेट। तो इसका अगर ऑब्जर्वेशन पूछा गया, हम लिखेंगे ये कलरलेस गैस विथ बर्निंग सल्फर स्मेल इज प्रोड्यूस्ड व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की और व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ओके, ये कंप्लीट हो गया। देन टेस्ट फॉर HCl गैस एंड टेस्ट फॉर HCl एसिड, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम जानते हैं, ये बार बार एग्जाम में आता है, एन एसिडिक गैस रिएक्ट विथ ना, ये बेसिक गैस रिएक्ट विथ एन एसिडिक गैस फॉर्म्स ए सॉलिड विथ डेंस व्हाइट फ्यूम, डेंस अमोनियम क्लोराइड, डेंस व्हाइट फ्यूम। दिस इज द टेस्ट। क्या होता है व्हेन ये होता है बेसिक गैस, ये बेसिक गैस रिएक्ट विथ ये होता है एसिडिक गैस गिव्स ए सॉलिड विथ डेंस व्हाइट फ्यूम। दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। ओके, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो अब अमोनिया के साथ जब ये वाटर मिल जाता है, इसको कहा जाता बोलते हैं हम NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया सॉल्यूशन और अमोनिया वाटर। जब माने HCl गैस NH4OH के साथ रिएक्शन होता है, करता है, तब देता है ए सॉलिड विथ डेंस व्हाइट फ्यूम NH4Cl प्लस वाटर। यहाँ खाली यहाँ वाटर नहीं था, ये डेंस व्हाइट फ्यूम NH4Cl देता है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर माने HCl एसिड ऑल्सो HCl गैस। गैस मतलब ये दोनों गैस को अगर मिला देंगे डेंस व्हाइट फ्यूम पे NH4Cl मिलेगा। अगर HCl एसिड का ऊपर हम NH3 अमोनिया गैस को फ्लो करें, तब हमें एक सॉलिड डेंस व्हाइट फ्यूम मिलेगा। सो दिस इज द टेस्ट फॉर बोथ HCl एसिड एज वेल एज HCl गैस। सो ये होता है HCl गैस के लिए टेस्ट है। सपोज हमें फाइनली HCl गैस लेबोरेटरी में मिल गया, इसमें HCl गैस, हम इसको टेस्ट करें कैसे? ये टेस्ट ट्यूब
dipped with ammonia water. Test tube. A test tube dipped in ammonia water or ammonia solution or ammonium hydroxide when is taken near the mouth of the HCl gas. It forms a dense white fume of NH4Cl. So this is also a test for क्या होता है HCl गैस. जब लेबोरेटरी में हम बनाते तब अमोनिया सॉल्यूशन में एक टेस्ट ट्यूब को हम डुबाते, इसके बाद यहाँ अगर ला के इसका फेस के पास रखेंगे तब इसी में हमें डेंस वाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड मिलता है. ओके, देन लिटिल बिट रहा. ओके, इसके बाद बहुत ज़्यादा हो गए और कम चीज़ बचा. ओके, और एक भी टेस्ट है वो एसिड के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक गैस इज पास्ड ओवर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स्ड विथ माने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ओके, देन वी कैन से ये Pb लीड क्लोराइड प्लस HNO3 तो PbCl2 बनेगा प्लस HNO3. ओके, माने हाँ PbCl2 HNO3. ओके, हम तो गलती कर दी, गलत कर दी. तो अब ये गलत हो गया. ये AgCl मैंने सेकंड में PbCl2 पढ़ा होगा इसीलिए कर दिया. तो ये हो गया AgCl white precipitate. तो when silver nitrate solution is treated with hydrochloric acid और हाइड्रोक्लोरिक गैस को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में फ्लो कराए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाए, हमें माने AgCl white precipitate of silver chloride is produced which is insoluble in nitric acid but soluble in ammonium hydroxide NH4OH. ऐसे क्वेश्चन आता है. Give your observation when silver nitrate solution is reacted with hydrochloric acid. हम कहेंगे ये white precipitate of silver chloride is produced which is insoluble in nitric acid but soluble in ammonia NH4OH और ammonium hydroxide. ओके, देन लीड नाइट्रेट, ये भी एक टेस्ट है. PbNO3 होल 2 लीड नाइट्रेट प्लस HCl. लीड नाइट्रेट के साथ अगर HCl रिएक्शन करेगा, ओके, PbCl2 प्लस HNO3. तो यहाँ पे 2 शायद हो गया PbCl2 2HNO3 हो गया. तो अब हम कहेंगे यहाँ पे PbCl2 जो होता है ये प्रेसिपिटेट. ओके, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लीड क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड which will be soluble on heating or which is insoluble in cold water but soluble in hot water. Name as salt which is insoluble in cold water but soluble in hot water. इसको ये प्रेसिपिटेट हो के व्हाइट प्रेसिपिटेट हो के जमा हो जाता, बढ़ जाता, इसको हीट करने पर ये सॉल्युबल हो जाता. सब ये हो गया, पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. एक बेहतर चीज बचा, ये हो गया एक्वा रेजिया. ये सबसे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस. एक्वा रेजिया ये वेरी इंपॉर्टेंट. एक्वा रेजिया 3 part of concentrated HCl and 1 part of concentrated nitric acid when mixed together. The mixture is known as aqua regia. Aqua regia को कहा जाता है रॉयल वाटर because it has the capacity to dissolve noble metals like gold, silver and platinum. तुम ऑर्नामेंट को जब कोई ऑर्नामेंट शॉप में जाते हैं तुम देखेंगे एक टाइप का एसिड वो निकलते हैं जिसमें कोई मैला वगैरह हो जाता तुम्हारा ऑर्नामेंट में, इसमें डालने पर धुआं निकलता. वो धुआं क्यों निकलता है? इसीलिए निकलता
क्योंकि वो कंसंट्रेटेड। अगर इसको मेल्ट कराएंगे पूरा ऐसे वो माने धुएंगे, मतलब खाली थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे उठा लेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर डाल देंगे वो पूरा मेल्ट हो जाता। सो माने इसको कहा जाता है, ये मिक्सचर को कहा जाता है रॉयल, कहा जाता था रॉयल वाटर बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। इसी में क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटिक नाइट्रिक एसिड being a oxidizing agent oxidizes being a oxidizing agent reduces hydrochloric acid and produce nascent chlorine. That nascent chlorine dissolves the noble metal like gold, silver, platinum. So this is aquaregia. This is very much important. Okay, so already HCl completed. So one chapter fully completed. Whatever question is asked or asked in the examination, according to the question pattern of ICSE, I am teaching you. So no new things I teach you, because whenever you go through the question paper, definitely you will see whatever I taught, same questions are repeated. From these portion every question can be solved. Okay, so this chapter completed in one shot. Okay, hoping you all the best. I remain for the next class. Thank you very much.